Okay, so now we are starting the session. So we can think that the main reason of our being worried is our what? What do you think? Generally, why we are worried in our life? Generally, we are worried in our life due to our habit. It is said that we make our habit and our habit make us. हम अपनी आदतों को बनाते हैं और फिर हमारी आदत हमें बनाती है एंड दिस इज एक्चुअली मेन कॉज ऑफ आवर वरी. अगर हमारी हैबिट अच्छी है तो दैट विल रिमूव आवर वरी, बट इफ आवर हैबिट्स आर ट्रबलिंग अस देन वी हैव टू वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज just choose one button in this given what you are watching here. Here generally three colorful buttons are there and you choose one. So obviously most of you will choose invest, spend or save. What you will choose? Invest. If there will be an intelligent person तो वो क्या चूज करेगा? इन्वेस्ट को चूज करेगा. Spend नहीं चूज करेगा. सेव नो, सेविंग इज नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंट. सेविंग मीन्स प्रेजेंट प्रॉफिट, आज प्रॉफिट मिलेगा सेविंग करने से. लेकिन इन्वेस्ट करने से क्या होगा? आज तो मिलेगा ही सही और फ्यूचर में मिलेगा. आज तो किसी तरह से हम लोग काम चला लेंगे लेकिन हमें क्या होगा? उससे इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला है. तो if you are intelligent and if you are actually देखो अपनी लाइफ में आज को देखो और अपने आप से पूछो कि हम लोग क्या कर रहे हैं. क्या हम अपने टाइम को या अपने ड्रीम्स को या अपने जो कार्य है जो हम करना चाहते हैं, अपनी जो एनर्जी है उसको हम सेव कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर स्पेंड कर रहे हैं तो बी केयरफुल. सेव कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर इज सिक्योर. So if we are investing our time, then why to worry? What is the reason of being worried? If we are investing our time, so we should learn in the life that we should give more focus to not just spend, to not just save, or to just invest the things. So our key point is for today's investing. Okay, so if we invest the thing, then why to worry? Okay, so in first slide we saw that the reason of our being worried was our habit. Now here we are watching B, C, D. Actually A is here. At the top of B is A. A may be anyone. A कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको दिखाया नहीं है. So actually what is this? This is the life, this is the journey of a person. This is the life journey of a person, of a person. A person may be anyone. एक person कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको दिखाया नहीं है. तो एक व्यक्ति का जीवन है, that is the journey from B to D. That is the journey from birth to death. And what is this C? Yes, is the reason of our being worried. हमारा जीवन जो है वो एक आर्क की तरह है जो B से C तक जाता है. जो आर्क होता है मैथमेटिक्स में, तो आर्क की तरह हमारा जीवन. उसमें जो B और C के बीच में एक वर्ड होता है, अल्फाबेट होता है, दैट इज C. C stands for choices. So if our choices are good, then why to worry? अगर हमने चॉइस अच्छी की है अपने जीवन में तो हम परेशान नहीं होंगे. तो अगर हमारे जीवन में परेशान है तो मेक श्योर कि आपने जरूर कोई ना कोई गलत चॉइस की है, and that wrong choice leads you towards the
worry. If you want to remove worries from your life, then choose the proper thing. So that's why it's stated that life is a journey from birth to death, and how will be our life, that depends upon C, and C stands for choices in the life. So if choices will be good, then why to worry? And if you are worried, then yes, you have made wrong choices, maybe a wrong choices. So this we have to learn here, that choices should be proper. Here we learn, if we are investing the thing, if we are investing the time, then why to worry? And if our choices are good, then why to worry? And first session we saw, if our habits are good, if our habits are good, then why to worry? Okay. So next is, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमको एक आइसक्रीम दिख रही है और एक कैंडल दिख रही है। देखिए दोनों बहुत मजेदार चीज है। दोनों हमने अपने जीवन में देखे पर्सन, एक ये who will be happy। देखो दोनों की लाइफ में एक चीज बहुत कॉमन है, आपको भी दिख रहा है, देखो ऐसे ही है लेकिन और जो कैंडल है वो भी क्या हो रही है, पिघल रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखें कि आखिर पिघल क्यों रही है, तो जो आइसक्रीम है वो पिघल रही है क्योंकि पिघला रहा है, टेस्ट देने वाली, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं पिघल रही है, वो दूसरों के जीवन में प्रकाश देने के लिए पिघल रही है। दोनों चीज पिघल रही है, एक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पिघल रही है और दूसरी दूसरों के जीवन में प्रकाश देने के लिए पिघल रही है। तो अगर हम अपनी लाइफ को आइसक्रीम की तरह बना लेंगे, सेल्फ सेंटर्ड, केवल मुझे ही अपने जीवन, मुझे ही मजे करने हैं, मैं ही होऊंगा, मैं ही ये प्राप्त करूंगा, मैं, हमारी लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है जो बस पिघलेगी, लेकिन केवल अर्थ के लिए पिघल रही है। जबकि एक मोमबत्ती है, वो पिघलती है दूसरों के जीवन को प्रकाश देने के लिए। तो अगर आपका जीवन इस आइसक्रीम की तरह मैं सेंटर्ड है, आई सेंटर्ड अगर आपका लाइफ है, यस यू विल बी इन वेरी इन योर लाइफ। समस्याएं परेशानियां आपके जीवन में बिल्कुल आएगी अगर आप केवल स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन अगर आपका जीवन एक मोमबत्ती की तरह है, then why to worry? Actually, you see, this is also the question of our choices. चॉइस है, लाइफ में पिघलना है, लेकिन लाइफ में किस तरह से पिघलना है? क्या लाइफ में हमें एक आइसक्रीम की तरह स्वार्थपूर्ण जीवन जीते पिघलना है, या फिर हमें एक मोमबत्ती की तरह दूसरों के जीवन में प्रकाश देते हुए पिघलना है? तो अगर हम अपनी लाइफ को चूज करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में मोमबत्ती की तरह बनना है, दूसरों के जीवन में प्रकाश देना है, तो then question will be, then why to worry? तो चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता की जरूरत तब होगी जब हम अपने स्वार्थपूर्ण जीवन जिएंगे, तब परेशानियां जीवन में खड़ी हो जाएंगी। तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखिए कि जब भी आप अपना स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं बड़ी हो जाएगी और हार्ट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मोमबत्ती की तरह कार्य करते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं,
तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है और एवरीवन विल फील एंड नॉट वरी। So this learn lesson we can learn from the candle. We have in our life it should become like a candle, not an ice cream. Okay, तो आई सेंटर्ड नहीं होना है अपनी लाइफ में, हमें आई से ही सेंटर्ड होना है अपनी लाइफ में। जितनी ज्यादा हम अपनी लाइफ में आई सेंटर्ड रहेंगे वी विल बी वेरी, और जितनी ज्यादा हम अपनी लाइफ में यू और वी सेंटर्ड रहेंगे वी विल बी हैप्पी। शुड लीव अवर लाइफ फॉर द एनलाइटमेंट ऑफ अदर्स। या आपको कौन जीवन नहीं जीना है, दूसरों के जीवन प्रकाश देना है। यस, ओके। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कभी कभी परेशानी तो आ जाती है, कितना ही हम अच्छा काम करें तो परेशानी तो आ जाएगी। इवन अगर कभी कभी हम मोमबत्ती बन जाए अपनी लाइफ में, कभी परेशानी आती है, तो उसमें आप एक फॉर्मूले को हमेशा याद रख सकते हो कि कार फॉर्मूला है। जब भी अपनी लाइफ में आप अपने घर में भी रखते होगी कार, जब भी आप अपनी कार को देखोगे तो आप अपनी पूरी समस्या अपने जीवन में इस कार फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। और एक बार अगर अगर आप अपनी किसी भी तरह की समस्या में इस फॉर्मूले को लगा दोगे तो उसको रिजल्ट निकलेगा, वो निकलेगा देन वाइट वरी एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस फॉर्मूला। every problem of our life, every problem in our life, we can do this solution, we can apply this solution to each and every problem. That is CAR. हम उस प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो 100% श्योर है देयर विल बी सॉल्यूशन। सी इज चेंज द चेंजेबल। अगर मुझे समस्या में है, किसी बारी में है, तो बहुत भीषण दिक्कत आ गई है हमारी लाइफ में, तो तीन चीजों को अप्लाई कीजिए। फर्स्ट सी इज चेंज द चेंजेबल। अपनी समस्या को देखिए, अपनी चिंताओं को देखिए, उनको एनालिसिस कीजिए और फिर अपने आप से प्रश्न पूछिए, कैन आई चेंज दिस सिचुएशन? इफ योर हार्ट सेज यस देन चेंज द चेंजेबल। तो जो चेंज हो सकता है उसको चेंज कर दीजिए। कुछ समस्या इस प्रकार हो गई कि चेंज नहीं हो सकती, तो जब आप सी कैटेगरी से हट जाए कि नहीं चेंज नहीं हो सकती है, तो आप आइए ए कैटेगरी पर। एंड ए स्टैंड फॉर एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जो चीज की चेंज नहीं हो सकती है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये चीज चेंज नहीं हो सकती है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके दिस इज अनचेंजेबल। तो अगर आपको फिर कोई चीज मिलती है जो अनचेंजेबल है, अगर वो चीज हो ही नहीं सकती है, परेशानी चिंता क्यों लेना। ठीक है, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड आर स्टैंड्स फॉर राइज अबव द अनचेंजेबल। कभी कभी ऐसा होगा कि हम चेंज भी नहीं कर सकते और एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन परेशानियां चिंताएं वरी हमको खाई जा रही है। देन द सॉल्यूशन फॉर वाई टू वरी इज राइज अबव द अनचेंजेबल। जो अनचेंजेबल है उससे इतना ऊपर उठ जाइए कि वो समस्या है वो वरी आप तक पहुंच ही ना पाए। तो जब वो चीज आप तक, वो समस्या, आपकी परेशानी, वो दिक्कत आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, देन लाइफ इज से वाई टू वरी। There will be no reason for being worried in the life. If we can change the changeable, if we can accept the unchangeable, or if we rise above the unchangeable. Okay. So next, let us see. Yeah. Again, we will discuss कि जो लाइफ है उसमें समस्याओं का जो कारण है, जो कारण होता है वो
मोस्ट ऑफ द टाइम होता है अवर चॉइसेस। अगर हम किसी समस्या में हैं, किसी परेशानी में हैं, वरी में हैं, तो हम अपने लाइफ की सिचुएशन को देखें अच्छे से और अपने आप से पूछें कि हमने अपनी लाइफ में गाइड किसको बनाया है। क्या हमने कृष्ण को गाइड बनाया है या फिर हमने शकुनी को गाइड बनाया है। देखिए इस इतिहास इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उसमें जो मेन भूमिका थी वो थी गाइड गाइड की। एक को गाइड किया था कृष्ण ने, अर्जुन, और दूसरे को गाइड किया था दुर्योधन को, शकुनी ने, और इतना बड़ा युद्ध हो गया था। तो अगर हम अपने समस्याओं को युद्ध से बचना चाहते हैं तो हमको देखना है कि हु आर अवर गाइडर्स। हमको गाइड कौन कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। एक मक्खी और मधुमक्खी। एक मक्खी जो होती है वो हजार गंदगियों में से भी, हजार अच्छाइयों में से भी गंदगी को ढूंढ लेती है, जो घरेलू मक्खी होती है। और एक जो मधुमक्खी होती है सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है येलो फ्लावर में, वो हजार गंदगियों के बीच में से भी एक अच्छा फूल ढूंढ कर उससे रस लेके निकल जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में मधुमक्खी हैं तो वाई टू वरी। और अगर आपने अपनी लाइफ में जो आपको गाइड करने वाला है, गाइडर है, अगर कृष्ण जैसे किसी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को अपना गाइडर बनाया है, then why to worry? So if you are in worry, make sure search again who is your guider. अगर आपका गाइडर शकुनी की तरह है, yes you will be in worry, and if your guider is like Krishna or a proper person, then life will say why to worry. So this is our actual test. We can test our own, see why we are in worry. Okay, so now we are moving towards the final conclusion, and I'm sure ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको नोट भी कर सकते हो और आप इससे किसी को भी प्रूफ कर सकते हो कि भाई वरी। We are now giving the proof that there is no actually reason for us to being worried. So here is a child, सबसे ऊपर देखिए एक बच्चा है, उसके नीचे हम धीरे धीरे एक क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले आप आइए बड़े वाले ब्लैक सर्कल पे, ellipse पे, actually this is ellipse. So ask the question. You can note down this. First question we have to ask: do you have any problem in life? Answer may be yes or no. So if answer is no, then why to worry? If answer is no, you don't have any problem in the life, then why to worry? The second part is no, we have problem. Yes. Do you have any problem in the life? Yes, we have problem in the life. Okay. Then next question. Do you have a solution? If you are having, you have any solution of your problem, then why to worry? The second aspect may be yes, I have the solution. If you are having the solution, then solve the problem. Why to worry? See how simple is this? I'm repeating again this formula. Ask yourself, do you have any problem? If answer is no, then why to worry? चिंता करने की जरूरत नहीं। Yes. If answer is yes, I have problem in the life. The second question you should ask to yourself, do you have any solution? क्या कोई उपाय है? If answer is no, कोई उपाय नहीं है, then why to worry? And if answer is yes,
I have a solution. I have a solution. So if you have a solution, then why to worry? So actually, there is no reason of being worried in the life. Our mind, our habits, our choices, they are actually making us worry in the life. So always remember this chart, this formula. So whenever you are in problem, or whenever you see anybody in the problem, you can just ask these questions and will feel nice. So we are concluding the session. What we learned from back to front. So here we are watching two questions actually. There is no actually reason of being worried in the life. You can prove from this chart. If our guider is proper, then there is no reason to be worried. If we are working like this honeybee, madhumakhi, then there will be no reason for being worried. Okay. Then car formula. If we are having any problem in the life, अगर हमें जीवन में कोई भी समस्या है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग उसको पुट कर देंगे. चेंज अगर हो सकता है तो चेंज कर देंगे, अगर चेंज नहीं हो सकता तो एक्सेप्ट कर लेंगे समस्या को, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो समस्याओं से इतना ऊपर उठ जाएंगे कि समस्या छू नहीं पाएगी. तो जब ऐसा होगा, then there will be why to worry. अगर हम अपने आप को I से V की तरफ लेके जाएंगे, Q की तरफ लेके जाएंगे, then why to worry. तो समस्याओं का कोई भी कारण नहीं होगा. अपने आप से हम लोग पूछें कि हम मोमबत्ती की तरह हैं या फिर हम आइसक्रीम की तरह हैं. अगर हम अपने आप को मोमबत्ती की तरह दूसरों के जीवन में प्रकाश दे रहे हैं, तो समस्या का कोई रीजन नहीं है. then why to worry. Life is a arc. Life is a journey between B to D. B stands for birth, D stands for death, and in between there are our choices. So if our choices are good, अगर हमारी choices अच्छी है, तो why to worry. If we are investing the things, the time, then why to worry. So if our habits are good, and if we are making good habits, then surely good habits will make our good character. Then why to worry. So this was the session. I hope you learned many things from this session, and I will request you every time whenever you are attending the session, you should have a notebook with you, so that if something is good, you feel it's good actually, so then you can write down it in your notebook actually. Yeah. So you can write down the things, and time to time you can remember the things, you can see the things, get motivated. So thank you very much, and a special thanks to Pulkit sir, who is the organizer of this session, and of course a special thanks to all of you who are attending this session. So if you are feeling motivated, then inspire your friends to attend sessions. Thank you very much. So